Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I will discuss with you blood pressure and its regulation. What is blood pressure? Blood pressure is the force which blood exerts on walls of blood vessel. Blood vessel की wall पे जो भी pressure blood exert कर रहा है, it is known as blood pressure. Blood pressure and its regulation. So today we are also going to discuss about the regulation of blood pressure. The most important pressure is systemic arterial blood pressure. What is systemic arterial blood pressure? It is the pressure which is being exerted by blood when ventricle push the blood into aorta. जब ventricles contract होके जो blood aorta में put करते हैं वो जो blood pressure है it is known as systemic arterial blood pressure, जिसे हम arterial blood pressure भी कहते हैं, which is the main blood pressure in controlling blood flow in and out of many of the organs of body. There are two types of pressures, systolic and diastolic pressure. Systolic pressure is the pressure which is being present in aorta when ventricles push that blood into the aorta. It is about 120 millimeter of mercury. Diastolic blood pressure is the blood pressure when there is a complete diastole. It means that the blood is being pushed out and now the heart is in the resting state. इजेक्शन पीरियड के बाद जो स्टेज आती है वो डायस्टली स्टेज होती है और डायस्टली स्टेज में जो प्रेशर फील एक्सर्ट हो रहा है, जो प्रेशर आर्टरीज में प्रेजेंट है, वो जो प्रेशर है इट इज़ नॉन एज डायस्टलिक प्रेशर और इसकी वैल्यू जो है वो 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होती है. ब्लड प्रेशर के कुछ फैक्टर्स हैं जो कि डिटर्मिन करते हैं कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ क्यों हो जाता है. कार्डिक आउटपुट के रिजल्ट में ब्लड प्रेशर इफ़ेक्ट होता है. जितनी कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होगी, जितना ब्लड जो है वो ज़्यादा पंप होगा थ्रू हार्ट पंपिंग, उतना ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा एंड सो कार्डिक आउटपुट विल इफ़ेक्ट ब्लड प्रेशर. पेरिफेरल रेजिस्टेंस इज़ मोस्टली फेल्ड बाय आर्टेरियोल्स. So when the resistance of the arterioles increases, definitely this will cause the blood to exert more force. अब वो ज़्यादा से ज़्यादा force exert करेगा to move forward. इस केस में भी जो peripheral resistance है वो blood pressure को enhance कर देती है. Third thing is autoregulation. Autoregulation is the phenomena in which body tissues adjust their blood flow or blood pressure according to their own demands. बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं और जो ऑर्गन्स हैं उनकी हर एक की ब्लड फ्लो की डिमांड और ब्लड की डिमांड डिफरेंट है. सो वो ऑर्गन्स और टिश्यूज़ अपने ब्लड फ्लो को कंट्रोल करते हैं कि उनको ज़्यादा ब्लड मिलना चाहिए या कम. दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यूज़ टू कंट्रोल देयर ब्लड रिक्वायरमेंट्स. दिस प्रॉपर्टी इज़ नॉन एज ऑटो रेगुलेशन. जब वो ब्लड का फ्लो को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हैं, दिस विल इंक्रीज़ और डिक्रीज़ द ब्लड प्रेशर. सो ऑटो रेगुलेशन इज़ ऑल्सो कॉजिंग चेंज इन द ब्लड प्रेशर. अब इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये ऑटो रेगुलेशन किडनीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर किडनीज़ में ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया तो किडनीज़ के जो सेल्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं बिकॉज दे आर डेलिकेट ग्लोमेरुलर कैपिलरी बेड्स. सेकेंडली जो ब्रेन है वो भी वेरी सेंसिटिव है. अगर वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज़ हो गया तो सेलुलर वेस्ट का लेवल इंक्रीज़ हो सकता है, जिसकी वजह से जो है वो इट विल लीड टू मैनी ड्रास्टिक चेंजेस. इस वजह से ये जो डेलिकेट ऑर्गन्स हैं इनमें ब्लड प्रेशर का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है और ये कंट्रोल जो है वो ऑटो रेगुलेशन के थ्रू होता है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दैट ऑर्गन्स और टिश्यूज़. रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर. Blood pressure is being regulated by two phenomena. They are short-term regulation and long-term regulation. Today we are going to discuss short-term regulation. Short-term regulation is being done through three different mechanisms. Number one is baroreceptor, number two is chemoreceptors, and number three is ischemic receptors. Long-term regulation is done by kidneys and there is important mechanism which is known as renin angiotensin aldosterone system. These two mechanisms are involved in long-term regulation of blood pressure, and rest of three, these are responsible for short-term regulation of blood pressure. Now we are going to discuss about short-term regulation of blood pressure, which is done through baroreceptor. What are baroreceptors? Baroreceptors are spray-type nerve ending which are found in wall of arteries.
दे आर मोस्ट अबंडेंट इन कैरोटिड आर्टरी एंड एओर्टिक आर्च। कैरोटिड आर्टरी में जो बैरोरिसेप्टर्स प्रेजेंट है दे आर नॉन एज कैरोटिड बैरोरिसेप्टर्स, और जो एओर्टिक आर्च में बैरोरिसेप्टर्स प्रेजेंट है दे आर नॉन एज एओर्टिक बैरोरिसेप्टर्स। कैरोटिड बैरोरिसेप्टर्स एंड एओर्टिक बैरोरिसेप्टर्स की एक्टिवेशन के लिए स्पेसिफिक ब्लड प्रेशर रिक्वायर्ड है। कैरोटिड बैरोरिसेप्टर्स 60 मिलीमीटर मोर देन 60 मिलीमीटर ऑफ प्रेशर पर एक्टिवेट होते हैं, जबकि एओर्टिक बैरोरिसेप्टर मोर देन 30 मिलीमीटर ऑफ प्रेशर पर एक्टिवेट होते हैं। दे आर स्ट्रेच रिसेप्टर्स। स्ट्रेच रिसेप्टर मीन वेन एवर दे रिसीव any stimulus of increase in arterial pressure, they will stretch and then they will transmit signals to the central nervous system, और then feedback signals जो है वो autonomic nervous system से वापस circulation में आएंगे, जिसकी वजह से जो arterial pressure है वो normal की तरफ move करेगा। इनकी जो पाथवे है वो डिफरेंट है। जो कैरोटिड बैरोरिसेप्टर्स हैं वो अपने सिग्नल सबसे पहले हेयरिंग नर्व में, देन ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व में, देन से हाइयर नेक में देते हैं। वहाँ से जाने के बाद ये मेडुलरी एरिया ऑफ द ब्रेन में पास करता है। जबकि जो एओर्टिक बैरोरिसेप्टर्स है ये क्योंकि एओर्टा में प्रेजेंट है, ये अपने सिग्नल्स को वेगस नर्व के थ्रू हायर सेंटर्स ऑफ ब्रेन की तरफ ट्रांसफ़र करवाते हैं। ब्रेन इनके ये सिग्नल डिटेक्ट करने के बाद जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो वेरियस चेंजेस लेकर आता है। इट विल आइदर increase sympathetic system, it will either decrease sympathetic system or increase parasympathetic system। फिर sympathetic and parasympathetic system की modification के बाद जो blood pressure है उसको normal level पर लेकर आया जाता है। This is the journal mechanism। Now we see what will happen when baroreceptors are activated, what reflex are they caused। When baroreceptors are activated, for example, carotid baroreceptors are activated at a pressure more than 60 millimeter of mercury. First of all, they transfer that signal to higher center of the brain. The brain will then inhibit vasoconstrictor center, और जिसके रिजल्ट जब वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर सेंटर ऑफ द ब्रेन इनहिबिट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। जब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है वो वेजोडायलेशन होती है। वेजोडायलेशन के रिजल्ट में हमेशा हार्ट रेट और हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, और इसके रिजल्ट में ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है। क्योंकि रीज़न ये है इसकी, क्योंकि जब ब्लड वेसल्स इतनी वाइडर हो चुकी हैं कि अब ब्लड को मूव करने के लिए फर्दर प्रेशर या फोर्स एक्सर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्लड वेसल्स का डायमीटर एनहांस हो चुका है, दे बिकम डायलेटेड, जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लड को ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, और इसके रिजल्ट में जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। इवेंचुअली इट विल मूव टूवर्ड्स नॉर्मल। अब ये जो बैरोरिसेप्टर्स है दे शुड नॉट बी एक्टिवेटेड ऑल द टाइम। डेफिनेटली जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज होने की तरफ आएगा तो बैरोरिसेप्टर्स जो कैरोटिड बैरोरिसेप्टर्स है दे नीड एटलीस्ट मोर देन 60 मिलीमीटर ऑफ प्रेशर। तो डेफिनेटली जब प्रेशर डिक्रीज होने की तरफ आएगा तो ये जो बैरोरिसेप्टर्स हैं ये इनहिबिट हो जाएंगे, इनकी जो प्रोडक्शन है वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, ये जो फर्दर एक्टिवेट हो रहे हैं ये स्टॉप हो जाएंगे। ये जो सिग्नल्स की प्रोडक्शन करवा के उसको आगे ब्रेन में ट्रांसफ़र करें, ये तमाम चीज़ें इनहिबिट हो जाएंगी। जब ये इनहिबिट हो जाएंगी तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की एक्टिवेशन थी वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी और सिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, और इस तरीके से काउंटर एक्ट करके ये दो फिनोमेनास ब्लड प्रेशर को इवेंचुअली मूव टूवर्ड्स नॉर्मल कर देंगे। So these are the reflex which is being produced by baroreceptors. Or now the question arises, are baroreceptors important in long-term regulation? Some physiologists believe that yes, baroreceptors are important in long-term regulation, but with long-term cycle, जैसे कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के साथ अगर ये कोलैबोरेट करके काम करेंगे तो yes, they are important in long-term regulation, but studies also show that they do not have any role in long term regulation. Why? बैरोरिसेप्टर्स क्विकली एक्टिवेट होते हैं, जैसे ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ दे क्विकली एक्टिवेटेड एंड देन दे कॉज ऑल दैट रिफ्लेक्सेस। आफ्टर दैट ये डिमिनिश हो जाते हैं, इनकी क्वांटिटी डिमिनिश्ड हो जाती है और ये एक्टिवेटेड हो जाते हैं। ये लॉन्ग टर्म जो है वो एक्टिवेटेड या स्ट्रेच नहीं रह सकते और ना ही ये लॉन्ग टर्म सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करके अपने इस फिनोमेना को कंटिन्यू कर सकते हैं। दैट्स वाई दे डू नॉट हैव मच इंपॉर्टेंट रोल इन लॉन्ग टर्म रेगुलेशन, बट येस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन short term regulation of blood pressure.
Now we are going to discuss how chemoreceptors play an important role in short-term regulation. Chemoreceptors are receptors which are located in chemoreceptor organs. They are present in two carotid bodies which are present अराउंड द बाइफर्केशंस ऑफ कैरोटिड आर्टरी. जब कैरोटिड आर्टरी दो फर्दर आर्टरीज में डिवाइड होने लगती है तो वहाँ उस डिवीजन पर दो कैरोटिड बॉडीज प्रेजेंट होती है जिसमें ये कीमोरिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. सेकेंडली जो एयोटिक कीमोरिसेप्टर्स है दे आर प्रेजेंट इन एयोटिक बॉडीज. एयोटिक बॉडीज आर प्रेजेंट एडजेसेंट टू द एयोटा. Chemoreceptors are chemosensitive cells. They are sensitive to oxygen, carbon dioxide and hydrogen ions concentration. They are activated when there is lack of oxygen and when there is excess of carbon dioxide and excess of hydrogen ions. But chemoreceptors need specific arterial pressure to be activated. They become activated when arterial pressure falls below 80 millimeter of mercury. जब arterial pressure 80 millimeter of mercury से नीचे जाएगा तो chemoreceptors activate हो जाएंगे. It means chemoreceptor जो है वो arterial pressure को elevate करवाएंगे and this will eventually normalize that arterial pressure. और जब arterial pressure maintain हो जाएगा तो chemoreceptors अपनी sensitivity को loss कर देंगे और inactivate हो जाएंगे. कीमोरिसेप्टर्स वेसोमोटर सेंटर को एक्टिवेट करते हैं जिसकी वजह से आर्टीरियल प्रेशर एनहांस हो जाता है और इवेंचुअली जब आर्टीरियल प्रेशर नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाने लगता है तो कीमोरिसेप्टर्स लेस सेंसिटिव हो जाते हैं और इनकी जो सिंथेसिस है वो स्टॉप हो जाती है. Now we will discuss about ischemic response. Ischemic response is the response which is produced by brain itself. जब ब्लड फ्लो वेसोमोटर सेंटर या लोअर ब्रेन स्टेम को कम मिलता है तो इसके रिजल्ट में जो उसकी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा स्वेयर हो जाती है. अब ब्रेन की टिश्यूज़ को इनफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं हो रही जिसकी वजह से ब्रेन और ख़ुद से एक फिनोमेना जनरेट करवाएगा, एक रिस्पॉन्स जनरेट करवाएगा जिसको हम इस्कीमिक रिस्पॉन्स कहते हैं. इसके रिजल्ट में जो वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर और कार्डियो एक्सेलरेटर न्यूरॉन्स है वेसोमोटर सेंटर में वो डायरेक्टली एक्टिवेट होंगी. जब ये दोनों एक्टिवेट होंगी तो ये हार्ट की पंपिंग को इन्हांस करने की कोशिश करेंगी. हार्ट की पंपिंग को इन्हांस करेंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रेशर है ब्लड का वो इन्हांस हो. जब ब्लड का प्रेशर इन्हांस होगा तो इसकी वजह से यहाँ पर जो स्लो फ्लोइंग ऑफ ब्लड है वो अब डेफिनेटली जब प्रेशर इन्हांस हो गया तो जो स्लो फ्लोइंग ऑफ ब्लड है वो डिमिनिश कम हो जाएगी. अब प्रेशर के साथ ब्लड जो है वो फ्लो करेगा ताकि ब्रेन में जो एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड की एक्यूमुलेशन हो रही है और लैक ऑफ ऑक्सीजन हो रही है उसको कंपनसेट किया जा सके और ब्रेन में जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है उनको ओवरकम किया जा सके. इस रिस्पॉन्स के रिजल्ट में इस कदर वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है कि ब्लड वेसल ऑक्लूड हो जाती हैं ताकि प्रेशर को ज़्यादा से ज़्यादा इन्हांस किया जा सके और प्रेशर 250 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक राइज कर जाता है सो टू सप्लाई द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी विच इज़ बीइंग क्रिएटेड इन ब्रेन. अब ये उस वक्त तक ये जो पावरफुल नेचर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की इस्कीमिक रिस्पॉन्स है ये उस वक्त तक जो है वो एक्टिवेट नहीं होगा जब तक 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक प्रेशर फॉल ना हो जाए. जब ब्रेन में 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक प्रेशर फॉल होगा तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस्कीमिक रिस्पॉन्स एक्टिवेट होगा और अगर प्रेशर 15 टू 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक पहुंच गया तब भी ये बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेट होगा ताकि ब्रेन की न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को ओवरकम किया जा सके और ब्रेन के टिश्यूज़ की डेथ ना हो जाए. ये इमरजेंसी प्रेशर कंट्रोल सिस्टम है. जब ब्रेन में जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा फॉल हो जाता है तब ये रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है और इट इज़ ऑल्सो नॉन एज लास्ट डिच रिस्पॉन्स. द सेंट्रल नर्वस इस्कीमिक रिस्पॉन्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रिस्पॉन्स क्योंकि ये बहुत लो आर्टीरियल प्रेशर पर भी एक्टिवेट हो रहा है लाइक 15 टू 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. सो टू नॉर्मलाइज दैट आर्टीरियल प्रेशर विच इज़ प्रोवाइडेड टू द ब्रेन ताकि उसकी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को जो है वो उसको ओवरकम किया जा सके और ब्रेन को जो है वो उसकी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जा सके. सो दिस इज़ ऑल अबाउट शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर. In the next lecture, we will discuss about long-term regulation and there are some other features of nervous control which are regulating arterial pressure. So, for this time, we have discussed about short-term regulation. Thank you so much.